اے نبی اور اے ان کے ساتھ ایمان لانے والوں، تمہیں جن مصائب سے کا سابقہ ہے اور سامنا ہے، جن شدید امتحانات و ابتلاءات سے تم گزر رہے ہو، ان میں تمہارے اندر صبر اور استقامت پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا سہارا قرآن مجید ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھو اور پڑھتے رہو اور پڑھتے رہو اور پڑھتے رہو۔ آپ کو معلوم ہے بالکل آغاز میں حضور کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی، جو بہت بھاری بوجھ آپ پر ہم ڈالنے والے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بوجھ، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ تیار کیسے کریں گے؟ ڈٹ بیٹھ کے نہیں نکالنی ہے، یہاں پہلوانی درکار نہیں ہے، جسمانی پہلوانی۔ یہاں کیا ہے؟ وہ روحانی قوت جو قرآن مجید کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ لہذا راتوں کو آپ جاگتے رہا کیجئے سوائے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی رات، یا زیادہ کریں 2/3 رات۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھتے رہیے قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر۔ یہ اصل میں ترتیل ہے کہ جس سے کہ در حقیقت تاثیر جو ہے وہ جذب ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تیز بارش اتنی مفید نہیں ہوتی زراعت کے لیے جتنی کہ ہلکی 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 مسلسل زیادہ دیر تک بارش ہو، اس لیے کہ وہ جذب ہوتی جائے گی، جذب ہوتی جائے گی، جذب ہوتی جائے گی، اور تیز بارش کا ریلا آئے گا وہ بہ جائے گا۔ لہذا قرآن کو تھوڑا تھوڑا رک رک کر پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اب رکو، غور کرو کیا کہا ہے، کیا الفاظ ہے، کیا معنی ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر رکو، سوچو کیا پڑھا، کیا الفاظ ہے، کیا معنی ہے۔ اس طرح رک رک کر ترتیل اسے کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل میں جذب ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہلکی بارش جو ہے وہ زمین میں جذب ہوتی ہے، اور زمین کے اندر جو رویدگی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اس کے خزانوں کو نکال کر باہر لے آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، کہیں آیت آ گئی ہے عذاب کی تو رک کر اللہ سے، اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچائیے، اللہم قنی عذاب النار، اے اللہ مجھے بچائیے اس عذاب سے، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر اجرنا من النار، اے اللہ، اے بچانے والے، اے بچانے والے، اے بچانے والے، ہمیں آگ سے بچا لیجیے۔ کہیں جنت کی جواب کا ذکر آ گیا، اللہم ارزقنا جنہ، اے اللہ ہمیں نصیب فرما جنت، اللہم ادخلنا فی جنتک، اے اللہ ہمیں اپنی جنت میں۔ یہ ہے رفتہ رفتہ ساتھ ساتھ وہ کیفیات بھی وارد کرنا اپنے اوپر، اس سے پھر اندر وہ قوت ابھرتی ہے روحانی، قلب کی گہرائیوں سے جو چشمے ابلیں گے طاقت کے، استقامت کے، ہمت کے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے خاص طور پر مصر کے قرآن، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں، حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ شریف، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے، جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے،
वहीं इसकी पहली 4 आयत में 4 चोटी की चीजों का जिक्र है, सबसे ऊंची चीज। पहली आयत क्या है? अर्रहमान, एक आयत हो गई। रहमान क्या है? अल्लाह का नाम है। कभी आपने गौर किया अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम कौन सा होगा? रहमान। क्यों? इसका मादा क्या है? रहमत। हमें सबसे बढ़कर जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? रहमत खुदाबंदी। नाम अच्छी तरह सुन लीजिए इस हुजूर के कौल को। हुजूर फरमाते कोई शख्स जन्नत में मुजर्रद अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी न करे। किसी सहाबी ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का सबूत दिया कि पूछ लिया, क्या हुजूर आप भी? जब आपने फरमाया कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में महज अपने अमल की बुनियाद पर जब तक कि रहमत खुदाबंदी जो है वो दस्तगीरी न फरमाए। पूछा गया क्या आप भी? आपने फरमाया हाँ मैं भी। आप अंदाज कीजिए कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रहमत खुदाबंदी के जरूरतमंद हो तो ताबे दीगरा चे रसद हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत रहमत खुदाबंदी। अब ये रहमत जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ये शान 2 अल्फाज के जरिए से आती है, रहीम और रहमान। और कोई मादा नहीं है जिससे 2 नाम बनते हो अल्लाह, लेकिन ये मादा है वाहिद रहमत का कि जिससे रहमान भी है रहीम भी है। रहीम सिफत मुशब्बा है, रहमत दाइम हो जाएगी, मुस्तकिल होगी तो रहीम कहेंगे। और रहमान, इसमें रहमत की है वो शान है कि जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर हो, हैजान की कैफियत, तूफानी कैफियत, रहमत खुदाबंदी का तूफानी जोश, वो है रहमान। आप तो रहते इस इलाके में है, आपको मालूम है अरब अगर भूखा मरा जा रहा हो तो क्या कहेगा? आना जुहान। प्यासा मरा जा रहा हो आना अफशान। बहुत खतरनाक होगा गज़बान। गज़बान आसिफा कुरान में आया, बहुत खतरनाक। रहमान जिसकी रहमत जो है जोश में है, ठाठे मारते हुए समंदर के मारे। तो ये अल्लाह ताला के नामों में सबसे प्यारा नाम। अब आगे चलिए, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहब, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहब कुरान है। इनमें जो मंतकी रब्त है उसको समझते जाइए। अच्छा आप ये सोचिए, जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, वो इल्मुल अस्मा जो हजरत आदम को दे दिया गया था अज़ल में, ये उसी का ज़हूर है, ये उसी की एक्सफोलिएशन है जो हो रही है, होती रहेगी अभी। और जो और दूसरे इल्म है वो किसने दिया? अल्लाह ने। ला यहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान। नोट करते जाइए, चोटी की चीजें जमा की। अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान। अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल ये कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया? आसमान किसने पैदा किया? जमीन किसने पैदा की? फरिश्ते किसने पैदा किए? क्या मतलब खलक़ल इंसान? उसकी तमाम मखलूकात में उसका क्लाइमेक्स, उसकी तख्लीक की मेराज, उसके तख्लीक का नुक्ता उरूज इंसान है। यह है कि जो मसजूद मलाइक बना है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़सीला। तो तख्लीक में सबसे ऊंची तख्लीक इंसान की, इल्मों में सबसे ऊंचा इल्म कुरान का, अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान। तकाज़े पूरे करो। तकाज़े क्या है? ईमान है तो अमल दुरुस्त होना चाहिए, ईमान है तो जिहाद होना चाहिए, ईमान है तो जान और माल खपानी चाहिए। तो जो ईमान दूसरे लोग जिस तरह लाए हैं, हमजा भी तो ईमान लाए हैं, आखिर उनका रास्ता तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अबू बकर ईमान लाए हैं, उनकी तरह ईमान लाओ। तो उन्होंने क्या कहा? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या उस तरह ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लाए? सफी का लफ्ज़ तो सभी जानते हैं, ये सुफहा किसे कह रहे हैं? आपने पढ़ा तो बहुत मर्तबा होगा इन आयात को, कभी सोचा किसको कह रहे हैं? वो अबू बकर को कह रहे हैं, वो हमजा को कह रहे हैं, वो उमर को कह रहे हैं। इनकी तो मत मारी गई, गर्रा हाउलाए दीनुहुम, इन्हें तो कोई होश ही नहीं। 2 मर्तबा हज़रत अबू बकर ने वो काम किया है कि हर वर्ल्डली वाइज इंसान ये कहेगा कि हिमाकत की है जिसके सामने दुनिया है। जब हिजरत के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, 40,000 दिरहम का सरमाया था, जबकि हज़रत अबू बकर ईमान लाए। मक्के के चोटी के ताजरों में से थे जो मलक तुजार कहलाते। लेकिन अब वो रुपया कहाँ खर्च हुआ? बिलाल को खरीदा, रुपया लेके खरीदा या वैसे खरीद लिया? आजाद कर दिया। अबू फकी को खरीदा, आजाद कर दिया। 6 है गुलाम और कनीज़े मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले जिनको अबू बकर ने अपने पैसे से खरीदा और आजाद किया। ये रुपया तो पिघल रहा है ना, जो थोड़ी बहुत पूंजी रह गई है। तो जब हज़रत हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, वो सारी पूंजी अपने साथ ले गए, घर वालों को छोड़कर गए। बूढ़ा बाप अंधा अबू कहाफा, बाद में वो भी ईमान ले आए। और ये अबू बकर है कि जिनकी 3 नस्लें एक वक्त में मौजूद थी मुसलमानों की। अबू कहाफा मोमिन, अबू बकर मोमिन, और अबू बकर की औलाद में आयशा, अस्मा और अबू बकर और अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर। ये कौन है? तो 3 नस्लें जिसकी बैक वक्त रही है ईमान में, वो शाज़ लोग हैं, उनमें अबू बकर। लेकिन ये कि उस वक्त तक अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे, वालिद नाबीना थे। तो वालिद है, बेटियां हैं, हज़रत आयशा, हज़रत अस्मा, हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, बीवी है, कुछ नहीं छोड़ के गए, एक पैसा। जब बाप को मालूम हुआ बेटा चला गया मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शख्स गुस्से में है, बेटे ताब में है, अब हमारा कौन वाली वारिस होगा? कौन है हमारी खबरगिरी करने वाला? बेटियों से पोतियों से अपने पूछते, कुछ छोड़ के नहीं गया क्या? नहीं। उनका हाँ अब्बाजान। क्या किया उन्होंने? कभी पढ़े वाकया? कुछ कंकड़ रोड़े लिए, एक कपड़े में पोटली बनाई और अंधे दादा का हाथ ऊपर फिरवाया। देखिए दादा जान ये छोड़ गए हैं, ये माल है, ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, अब्बाजान हमें ऐसे नहीं छोड़कर गए। वाकया क्या है कि एक पैसा नहीं छोड़ा अबू बकर ने घर वालों के लिए, सब कुछ ले गए कि क्या पता मोहम्मद के साथ जा रहा हूं, किस वक्त क्या जरूरत पेश आ जाए। तो ये कोई अक्लमंदी की बात है?
अपने अपने गरीबानों में जाके आप ये अक्लमंदी करेंगे? कहें चाहे ना, ये बात दूसरी है, लेकिन ये कि इसको कौन हम में से अक्लमंदी कहेगा। इसी तरीके से जब ग़ज़वा तबूक का वक्त आया, वो वाक़या तो बहुत मशहूर है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि उस ज़माने में मेरे पास इत्तेफ़ाक़न पैसा बहुत था, मैंने ये सोचा दिल में कि इस मरहले पर तो मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा। मुसाबकत उनमें भी थी, लेकिन नेकी की मुसाबकत, खैर की मुसाबकत, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मुसाबकत। तो मैंने सोचा कि मैं बाजी ले जाऊंगा। मैंने क्या किया, कुल दौलत जो थी उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर रखा और 1 लाख हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर ने पूछा कि उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि जी हाँ, निस्फ किया मैंने, निस्फ अल्लाह की राह में हाजिर है, निस्फ छोड़ा है। ठीक है, अब वो आए अबू बकर, पूछा हुजूर ने, अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि नहीं, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम के सिवा कुछ नहीं। यही है ना, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस, मुझे घर वालों के लिए कुछ नहीं। ये काम जो है, तो ये जिनका हम इस वक्त जिक्र पढ़ रहे हैं, मुनाफिकीन, उनके नजदीक हिमाकत थी या अक्लमंदी थी? ये समझदारी थी या बेवकूफी थी? वो है जो बात कह रहे हैं कि जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ भले लोगों की तरह जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो क्या कहते हैं, अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। आगाह हो जाओ, असल अहमक ये है, असल बेवकूफ ये है, इन्हें नहीं पता कि हकीकत क्या है, नफा क्या है, नुकसान क्या है। वो जो बात मैंने सूरह अल-अस्र में बयान की थी, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जिसके ज़हन और क़ल्ब पर ये सूरत कंधा हो जाएगी, उसके नजदीक अक्लमंदी ये है कि सब कुछ अल्लाह के राह में लगा दो। जिसके दिल में ये बात बैठी नहीं, उसके लिए अक्लमंदी ये है कि बचा बचा कर रखो, छुपा छुपा कर रखो, संभाल संभाल कर रखो। अक्लमंदी का उसमें तकादा कुछ और, इसमें तकादा कुछ और। लेकिन यहाँ भी फरमाया वलाकिन ला यअलमून, इन्हें अभी इल्म नहीं है इसका। इससे पहली आयत में भी फरमाया वलाकिन ला यशऊरून, इन्हें शऊर नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा था, ये वो गैर शऊरी निफाक है, ये बढ़ता चला जा रहा है। पहले झूठा बहाना था, फिर झूठी कस्में हुई, फिर दुश्मनी हो गई सादिकुल ईमान, जो जान और माल लगा रहे हैं, निछावर कर रहे हैं, परवाना वार अल्लाह पर, अल्लाह के दीन के ऊपर निसार कर रहे हैं अपने आप को, उनसे अदावत, उनसे दुश्मनी, उनका बुग़्ज़, ये थर्ड स्टेज तक पहुंच गए। अब भी वो अपने आप को मुनाफिक नहीं समझते, वो समझते अक्लमंद तो हमें, ये तो बेवकूफ है हम हैं। असल में भाई समझ के चलना चाहिए, तेल देखनी चाहिए, तेल की धार देखनी चाहिए, दाएं बाएं से देखना चाहिए, हिफाजत का भी ख्याल होना चाहिए। ये सारी चीजें तो अक्लमंदी है ना दुनिया के एतबार से, तो वो तो उन्हें बेवकूफ समझ रहे हैं, अपने आप को मुनाफिक कहां समझेंगे। चाहिए ठीक है भाई, दीन भी चाहिए, लेकिन दुनिया की फिक्र भी चाहिए कि नहीं? ये आप कहते हैं कि नहीं कहते? ये तो बात आपने बहुत दफा सुनी भाई, ठीक है दीन भी होना चाहिए, लेकिन दुनिया भी तो होनी चाहिए कि नहीं? ये है समझ दुनिया की, ये हमारे मेयारात हैं। यही वजह है कि दीन जलील से जलील तर हो रहा है। दीन वो जो मैंने हाल ही के अशार सुनाए थे कि पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे, इस्लाम का गिर कर ना उभरना देखे, माने न कभी के मद है हर जगह के बाद दरिया का हमारे जो उतरना दे। ये दरिया चढ़ा कब था? जब सहाबा किराम ने वो फेनेटिसिज्म जिसको आज हम कहेंगे, उसका जब मुजाहरा किया, उसका सबूत दिया, दामे दिल में सुखने, जान माल तन धन सब लगा दिया, तो अल्लाह के दीन में बाहर आ गई, रौनक आ गई, दीन का गलबा हो गया। और जब हम अपने समझ कर रखेंगे, तो जाहिर बात है कि उसका तो फिर जो हशर होगा वो वही। दीन में कमजोरी, हमारी दुनिया जो है फल रही है, फूल रही है, दीन जो है वो कमजोर होता था। ये है थर्ड स्टेज इस निफाक की, कि जिसके बाद अब कोई इम्कान वापसी का नहीं। ये गैर शऊरी निफाक, जान लीजिए कि ये नहीं है कि माजी ही माजी में था, अब इसका कोई इम्कान नहीं, ये ना समझिए। अब भी ये निफाक जो है, ये मैं बता दूं आपको, एक आम आदमी है, दीन का तकाजा ही सामने नहीं है, उसे पता ही इतना है कि अल्लाह के दीन का तकाजा नमाज रोजा, वो नमाज रोजा कर रहा है, उस पर निफाक का हमला नहीं होगा। उसको आप कह दें कि उसकी समझ कम है, उसका शऊर कम है, उसे पता नहीं है, दीन के तकाजों से वाकिफ नहीं है, वो बचा हुआ है, वो महफूज है। वो जो मैंने आपसे कहा था परसों, और एक साहब ने जवाब दिया मुझे बाद में कि आज आपने जो बात कही है तो कल लोग कम आएंगे, आपने डरा दिया कि ये जो तकाजे दीन के सामने आ रहे हैं, तो इससे जिम्मेदारी बढ़ रही है। अब जिसने समझ लिया है फिर पीछे रहे, वो निफाक के खतरे में है। जिसे समझ ही नहीं है, वो फिर भी कोई ना कोई उज़्र पेश कर सकेगा कि अल्लाह इन मौलवियों से पूछ जिन्होंने हमें बताया नहीं, इन्होंने तो दीन के तकाजे में ये बताया नहीं, इन्होंने तो हमें नूर और बशर में चक्कर दे के लड़ाई रखा, इनसे पूछ। असल से मुजरिम जो है वो ये है, वो वाकया ये है कि किसी दर्जे में बचेंगे कि दीन चाहता क्या है, दीन के तकाजे क्या है, तौहीद की हकीकत क्या है, शिर्क की हकीकत क्या है, इसकी तरफ अगर तवज्जो ही नहीं दिलाई जा रही, और उस गरीब को पता ही नहीं, उसे पता ही सिर्फ ये है कि खड़े होकर सलाम पढ़ने में इतना फायदा होता है, वो पढ़ रहा है बेचारा, लिहाजा उसका मामला आसान है बनिस्बत उस शख्स के जिसके समझ में आ गया हो, बात उसने पाली हो। दीन ये चाहता है, दीन अपना गलबा चाहता है। अल्लामा इकबाल ने गालिब पर एक जो नज़म लिखी है बागे जरा में है, उसका एक शेर बड़ा प्यारा है, गेसुए उर्दू अभी मिन्नत पजीरे शाना है, शम्मा ये सौदाई ये दिलसोजी ये परवाना। ये दीन जो है ये तो चाहता है कि अहले ईमान परवाना वार इस शमा पर निशान जाने लगा, गर्दनें कटवा दे। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और अगर इससे पीछे हटेंगे, कदम पीछे हटा नहीं, ये निफाक की जद में आए नहीं। वो निफाक की पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वहां पहुंच गए, वापसी नहीं। इसके लिए एक और दो आयात में चाहता हूं
کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے۔ ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی۔ سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے، دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی، سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، جس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر۔ ایک ہے منجدھار میں کودنے والے کہ ہر جب آباد ماں کشتی در آپ انداختے، جیسے کہ طارق نے کیا تھا، ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی، کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے۔ طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سو، گفتن دکارے تو رہے عقل و خرد خطاس۔ دیکھیے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی، لوگوں نے کیا یہ طارق کیا کیا، عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے۔ عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل کر چلو، جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، واپسی کا کوئی سوال۔ اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے